اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 11th سبجیکٹ فزکس، جو ٹاپک ہے آبجیکٹ ان موشن. آبجیکٹ ان موشن، لیکن جو آبجیکٹ ہے اس کے لیے ٹو سٹیٹس ہوتے ہیں، ٹو سچویشنز ہوتے ہیں. ایک سچویشن میں آبجیکٹ ریسٹ میں ہوتا ہے، اور جو سیکنڈ سچویشن اس میں آبجیکٹ موشن میں ہوتا ہے. پہلے ہم کریں گے ایکسپلین اسٹیٹ آف ریسٹ. اسٹیٹ آف ریسٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ آبجیکٹ کیسے ریسٹ میں آ جاتا ہے، کیسے ریسٹ میں ہوتا ہے. ایکچولی جو ریسٹ ہے یہ اسٹیٹ آف آبجیکٹ ہوتا ہے ایٹ وچ دی آبجیکٹ ڈز ناٹ چینج اٹس پوزیشن ود ٹائم. یعنی جب آبجیکٹ ریسٹ میں ہوتا ہے، اپنی پوزیشن کو یہ جب چینج نہیں کرتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ود ریسپیکٹ ٹو اٹس سراؤنڈنگز، اپنے سراؤنڈنگز میں. مان لیجیے کوئی فٹ بال کی ایگزامپل لیجیے، گراؤنڈ میں ہے، یہ ریسٹ میں ہے. باڈی کیوں ریسٹ میں آئی؟ اس پہ فورسز ہیں، اس پہ فورسز ہیں. لیکن اس پہ جو فورسز ہے آل راؤنڈ، آل فرام آل اٹس سائڈز، اس پہ فورسز ہیں. لیکن یہ فورسز آپس میں برابر ہیں، یہ بیلانسڈ فورسز ہیں. ان بیلانسڈ فورسز کی وجہ سے آبجیکٹ ریسٹ میں ہوتا ہے ود ان اٹس سراؤنڈنگز. جو کہ گراؤنڈ میں اگر بہت سارے آبجیکٹس ہوں گے، بوائز ہوں گے، گرلز ہوں گے، باقی چیزیں ہوں گے، یہ آبجیکٹ اس سراؤنڈنگ میں ہے ود ریسپیکٹ ٹو اٹس سراؤنڈنگ میں، یعنی سراؤنڈنگ ارد گرد کے اعتبار سے یہ آبجیکٹ جب ریسٹ میں ہوتا ہے ود ان اٹس سراؤنڈنگ ود پیسیج آف ٹائم، یعنی ود ٹائم کے ساتھ. مان لیجیے 10:01 پر آبجیکٹ ریسٹ میں ہے، ود ٹائم ایٹ دیٹ ویری 10 and 1 PM وی کین سے آبجیکٹ از ایٹ ریسٹ. ٹھیک ہے نا؟ کیوں ریسٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی ایک وجہ ہے. مان لیجیے ہمارے پاس گراؤنڈ میں سمجھو بال ہے، یعنی اس سائڈ لیفٹ رائٹ سائڈ بھی اس پہ مالیکولز یا پارٹیکلز کا ہی آپ دا آئر سٹرائک ود دا بال، لیفٹ سائڈ میں بھی اس پہ سٹرائک کرتے ہیں. لیکن یہ رائٹ سائڈ پارٹیکلز بھی فورس دیتے ہیں، لیفٹ سائڈ پارٹیکلز بھی فورس دیتے ہیں. لیکن FL برابر ہے FR. ٹھیک ہے نا؟ نیچے بیکاز آف اٹس ماس، نیچے اس کی گریویٹیشنل پول اس پہ ہے، اس بال پہ گریویٹیشنل پول ہے، اوپر سے آئر کا تھرسٹ آ جاتا ہے. لیکن گریویٹیشنل پول، آئر تھرسٹ، لیفٹ سائڈ فورس، رائٹ سائڈ فورس، آل دیز فورسز جتنی بھی سائڈز میں جتنے بھی فورسز ہیں یہ آپس میں برابر، یعنی FL از اکول ٹو FR. یعنی نیدر بال موو ٹورڈز لیفٹ نار موو ٹورڈز رائٹ بیکاز FL از اکول ٹو FR. اب باڈی نیچے نہیں جائے گی، گریویٹیشنل پول ہے، اوپر اس کے آئر کا تھرسٹ ہے، یہ دو فورسز آپس میں برابر ہے. سو دا آبجیکٹ کمز انٹو ریسٹ، اٹ ڈز ناٹ چینج اٹس پوزیشن. اس سچویشن کو، اس سٹیٹ کو ہم کہتے ہیں ریسٹ، سٹیٹ آف ریسٹ. اب سمپلی وی کین سے سٹیٹ آف ریسٹ وہ سٹیٹ ہے، وہ سچویشن ہے جب باڈی ٹائم کے ساتھ ساتھ ود ان اٹس سراؤنڈنگز موو نہیں کر سکتا ہے بیکاز آف نمبر آف فورسز ایکٹ آن دا object. The object goes under the effect of all types of all forces, from all side forces. ٹھیک ہے نا؟ اب ہے all these forces are balanced. ان فورسز کو ہم بیلانسڈ کہتے ہیں. جو ہی ان بیلنس فورس بنیں گے، اسپیشلی لیفٹ سائڈ فورس، رائٹ سائڈ فورس، the body will move, the body will not be in rest, it will move. ٹھیک ہے نا؟ the magnitude of all these forces is same. یعنی ان کا جو میگنیچیوڈ ہے، جتنا فورس FL دیتا ہے وہی فورس FR بھی دیتا ہے. گریویٹیشنل پول کی طرف سے اس پہ فورس ہے، آئر کی تھرسٹ کی طرف سے اس پہ فورس ہے. سو دا آبجیکٹ کمز انٹو ریسٹ. سچ اے سچویشن از سیڈ ٹو بی اسٹیٹ آف ریسٹ. ٹھیک ہے نا؟ اب ہے ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ اے بک لیئنگ آن اے ٹیبل. جب کوئی بک ٹیبل پہ ہے، ایز پر نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن، either ball or book, the body will remain always on the table until or unless some external force will act over it. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک مثال ہے، یہ اسٹیٹ آف ریسٹ کی مثال ہے.
A person sitting on a chair, या कोई पर्सन चेयर पे बैठा है, ये भी एग्जाम्पल है रेस्ट की. A stone on the ground, एक स्टोन ग्राउंड पर है, बिल्कुल तब तक ग्राउंड में रहेगी, ग्राउंड पर रहेगी जब तक इसको हम नहीं उठाएंगे, एटसेट्रा. इसके अलावा बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हमारे पास है. फिर है स्टेट ऑफ मोशन. जो मोशन है इट इज़ द वाइस वर्सा ऑफ द रेस्ट, यानी रेस्ट में बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, बट इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये भी एक स्टेट है, ये भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्टेट है. लेकिन इसमें जब बॉडी मोशन में आ जाती है, इस पे जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स वो अनबैलेंस्ड है. यानी जो लेफ्ट साइड राइट साइड फोर्स है, अगर लेफ्ट साइड में हम फोर्स देंगे वो उससे ज़्यादा होगा, अनबैलेंस्ड है, वो राइट साइड के फोर्स के बराबर नहीं है. अगर राइट साइड से हम फोर्स देते हैं वो लेफ्ट साइड के बराबर नहीं है, वो ग्रेटर है. लिहाजा और जो ग्रेविटेशनल पुल है, उस ग्रेविटेशनल पुल का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है उसके मुकाबले में जो हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स देते हैं. सो द बॉडी कम्स इनटू मोशन. ये लिहाजा हम कहेंगे जो मोशन है ये ऐसी स्टेट है ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम, विद इन इट्स सराउंडिंग्स, विद इन इट्स सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द में अपनी. यानी बॉल अगर ग्राउंड में है, या तो इसको ऊपर जाना है ऐसे किक मारने से, या बाएं दाएं बाएं, इसी सराउंडिंग में बॉल जाएगी जब मोशन में आ जाएगी. बाकी ये दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाएगी, यानी अपने ही इस इर्द गिर्द में ये अब मोशन में आ जाएगी विद रेस्पेक्ट विद इन सराउंडिंग्स. इसमें क्या होता है विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, द ऑब्जेक्ट गोज अंडर द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. क्यों ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, इस पे फोर्सेस थे ऑल राउंड फोर्सेस. जब इस पे फोर्स दिया वो फोर्स इस पे वो अनबैलेंस्ड था, दैट वाज नॉट इक्वल टू द फोर्सेस नेचुरल फोर्सेस. ये नेचुरल फोर्सेस हैं, कोई इनको फोर्स नहीं, ये फोर्स कोई नहीं दे, बाई दीज फोर्स आर बाई नेचर. यानी जो हम फोर्स यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स देंगे, आर्टिफिशियल फोर्स देंगे, वो अनबैलेंस होगा, वो उससे ज़्यादा होगा. जो इस पे नेचुरल फोर्सेस हैं उन नेचुरल फोर्सेस से वो ज़्यादा होगा. इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है ये किस में जाता है, किसके इफेक्ट में जाता है, अनबैलेंस फोर्स के इफेक्ट में जाता है. द अप्लाइड फोर्स इज़ अनबैलेंस्ड. जो हम इस पे फोर्स देते हैं नेचुरल फोर्स के मुकाबले में हमारा आर्टिफिशियल फोर्स क्या है, वो है आर्टिफिशियल फोर्स क्या है, वो है अनबैलेंस्ड. इसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है. इट ओवरकम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसमें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इस पर ओवरकम करता है, वो कम होता है, लिहाजा वो ब्रेक होता है. ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है. ठीक है ना. यहाँ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है. अनबैलेंस फोर्स लगने से ये ऐसी स्टेट है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम विद इन इट्स सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू. अब एग्जांपल के मूविंग बॉल बॉल पे जब हम फोर्स देते हैं, पहले बॉल रेस्ट में है, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेचुरल बैलेंस फोर्स. लेकिन जो ही हमको इस पे फोर्स देते हैं वो जो इसमें फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस बनते हैं, यानी उनका और जो इनका पावर वो कम होता है, वो ओवरकम नहीं कर सकते. जो फोर्स देते हैं उन पे ओवरकम करता है. लिहाजा ऑब्जेक्ट को मजबूरन अपनी जगह से चेंज हटना होता है, चेंज करनी होती है. सेकंड है ये फर्स्ट मूविंग बॉल. सेकंड ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स. एक रेल पे ट्रेन जब मूव कर रही है वो मोशन कहलाता है, वो सिचुएशन मोशन कहलाता है, वो स्टेट मोशन कहलाता है. शिप सेलिंग ऑन वाटर, या ये कहिए अगर कोई शिप है वो पानी में तैरता है, यह भी मोशन की एग्जाम्पल है. अब है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. व्हेन देयर इज ए रेस्ट suddenly the body changed its position, it comes into motion. These two situations, these two states are related to each other, are related to each other. इसकी मिसाल क्या है, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था, जो ही इस पे हमने फोर्स दिया, फोर्सेस ब्रेक हुए, अनबैलेंस हुए, वो रेस्ट में मोशन में आ गया. बॉल ग्राउंड पे चल रही है, इस पे जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर कोई नहीं आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली बॉल विल इनटू रेस्ट. यानी sometimes in rest and sometimes in motion. It depends upon the force. Unbalanced force makes the body or object into motion. The balanced forces come or take the object into rest. In both situations, we are in need of force. By the force, the object changes its position.
it changes from rest state, and from the motion state of motion it comes into rest state. And for both we have need of force. यानी ये रिलेटिव आपस में रिलेटिव, यानी it means an object in one situation में दो सिचुएशन है, either rest or motion. In one can be at रेस्ट, एक सिचुएशन में रेस्ट में होगा जब फोर्सेस बैलेंस होंगे, ठीक है ना. बट इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन, ये मोशन में, बिल्कुल यही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. रेस्ट में बैलेंस्ड फोर्सेस इस पे होते हैं, नेचुरल बैलेंस्ड नेचुरल फोर्सेस, लेकिन वो बैलेंस होते हैं. मोशन में आ जाने से इस पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जो नेचुरल फोर्स इनको अनबैलेंस किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स से, तब ये मोशन में आ जाता है. फॉर बोथ सिचुएशंस वी हैव नीड ऑफ फोर्स. टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू टेक इट इनटू रेस्ट, वी हैव नीड ऑफ ऑब्जेक्ट. टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इनटू मोशन, वी हैव नीड ऑफ फोर्स. वी हैव नीड ऑफ फोर्स, यानी रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है और मोशन में लाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है. ठीक. एग्जाम्पल, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन. मूविंग ट्रेन में अपने पैसेंजर्स, इसमें जो इसके जो पैसेंजर्स आपस इसके इर्द गिर्द हैं, उनके मुकाबले में विद रेस्पेक्ट टू देम, विद रेस्पेक्ट टू दीज पैसेंजर्स, ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन रेस्ट में है. लेकिन जब आउटसाइड ये देखते हैं विद रेस्पेक्ट आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स, ये मोशन में है ना. ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर्स. जो फेलो पैसेंजर्स इसमें ये गाड़ी ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं उनके मुकाबले में ये भी रेस्ट में है. लेकिन जब इस पूरी ट्रेन को अपनी सराउंडिंग के साथ कंपेयर किया जाएगा तब वो मोशन में है, ना. पैसेंजर के साथ कंपेयर किया जाता है, पर्सन रेस्ट में है. जब इस पर्सन को हम कंपेयर करेंगे आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ, तब ये मोशन में है, ना. क्या है? हिज फेलो पैसेंजर्स but in motion with respect to objects outside the train. ट्रेन के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको कंपेयर करके ये पर्सन मोशन में है. लेकिन अगर इस पर्सन को हम कंपेयर करेंगे पैसेंजर के साथ, फेलो पैसेंजर, तब ये रेस्ट में है, ठीक है ना. इसके अलावा ए पर्सन सिटिंग इन हिज हाउस. अब कोई पर्सन अपने हाउस में बैठा है, इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ के एतबार से. बिल्कुल जिस तरह ट्रेन है, यहाँ पर्सन अपने कमरे में है, ठीक है ना. ट्रेन समझो आप हाउस में बैठा हुआ है अर्थ के मुकाबले में. और अगर अर्थ मोशन में है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये पर्सन विद इन द अदर फैमिली मेम्बर्स, ये किस में है? ये रेस्ट में है. लेकिन जब इसी को हम कंपेयर करेंगे विद अदर प्लैनेट्स, तब ये मोशन में है. क्या? जो बाकी प्लैनेट्स इनके मुकाबले में अर्थ क्या मूव कर रही है, तब ये किस में है? मोशन में है. ये था हमारा आज का टॉपिक. एक है ऑब्जेक्ट इन मोशन, रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, एंड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. ये था हमारा आज का टॉपिक. कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. मोशन के कितने टाइप्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक बॉडी के लिए. थैंक यू वेरी मच.